Listen, students. I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Jamui Government Engineering College, Bihar. Now I am going to start the non-random sampling methods in your subject line, business analytics. In the business analytics, I am going to start the topic non-random sampling method. In earlier class, I have discussed random sampling methods in which I enumerate simple random sampling method, stratified sampling methods, systematic sampling method, multi-stage sampling method. Now I am going to start non-random sampling method. In earlier classes, what the method that I was taught, all are random sampling methods. Now I am going to discuss non-random sampling methods. There are three non-random sampling methods. Judgment sampling method, quota sampling method, convenience sampling method. On the three heads, this class is going on. On the topic non-random sampling methods. What it mean by non-random sampling method? This is obvious with the name non-random sampling methods. It is clear here here in the sampling method, randomness is irrelevant. There is no randomness. What is meant by randomness? I earlier taught you randomness means without prejudice, without opinion, without judgment, without quota.
without any discretions. Whenever one select sample haphazardly, then such type of sampling is called random sampling. But if there is judgment, opinion, quota, convenience, certainly such type of sampling is not random sampling. So, in this method of sampling, the choice of sample item depends exclusively on the judgment of the investigator. In other words, the investigator exercises its judgment into the choice of sample item and includes those items in the sample which he thinks are most typical of the population with regard to the characteristic under investigations. I am telling that about judgmental sampling. So here judgment is the essence of sampling. What a researcher decides, take judgment, accordingly he take the sample. Here there is no randomness, but judgment. For example, if a sample of 10 students is to be selected from a class of 50 for analyzing the spending habits of students, the investigator would select 10 students who is in opinion represent the class. पचास छात्रों की कक्षा में अगर 10 छात्र के चुनाव करने हैं तो कोई इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट के आधार पर जो है 10 स्टूडेंट को चुनता है रिसर्च के लिए। खर्च के जो तौर तरीके हैं, जो हैबिट्स हैं, उनको परखने के लिए वो 10 स्टूडेंट जो हैं वो प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र होंगे। इसमें बिल्कुल जजमेंट है। So here there is judgment. Certainly this is not random sampling. This is a classifications of non-random sampling method and so-called judgment sampling. It's okay. Now the second one is quota sampling. Earlier I taught you that in random sampling even quota is not there. But if there is quota, certainly behind that some opinion, some judgment, some discretions, कोई ना कोई निर्णय इसके पीछे है कि नहीं साहब इतना इतना कोटा होना चाहिए।
तो जहाँ स्वनिर्णय है, जहाँ कोटा है, प्रिजम्पशंस है, वहाँ तो रैंडमनेस तो है नहीं। इसलिए इसको दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉन रैंडम मेथड्स। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है, ये कोटा सैम्पलिंग। Quota sampling is a type of judgment sampling. In a quota sample, quotas are set up according to given criteria, but within the quota, the selection of the sample item depend upon personal judgment. यहाँ पर कोटा तय कर दिए जाते हैं और उस कोटा के अंतर्गत ही इन्वेस्टिगेटर जो है अपना स्वनिर्णय का अधिकारी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, in a radio listening survey, the interviewer may be told to interview 500 people living in a certain area, and that out of every 100 persons interviewed, 60 are to be housewives, 25 farmers, and 15 children under the age of 15. Within quotas, the interviewer is free to select the people interviewed. पाँच सौ व्यक्तियों के एक पॉपुलेशन साइज में से 100 व्यक्ति का चुनाव करना है, जिसमें पहले से ही कोटा निश्चित किए गए हैं कि उसमें से 60 जो है वो जो है गृहिणियाँ होनी चाहिए, 25 जो है वो किसान होने चाहिए और 15 जो है बच्चे होने चाहिए जिनका उम्र जो है वो 15 वर्ष के जो है नीचे होने हो। ये कोटा जो है पहले से ही जो है तय किए हुए हैं। तो ये जो कोटा भी है एक तरह का जजमेंट सैंपलिंग ही है, क्योंकि यहाँ पहले ही से जजमेंट किया हुआ है कि भाई ये जो है कोटा रहेगा। तो जब ये कोटा रहेगा तो ये तो एक तरह का जजमेंट है या ओपिनियन भी कहा जा सकता है, प्रिजम्पशंस भी कहा जा सकता है। तो ये तो निश्चित है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है और इस कोटा के ही अंतर्गत इंटरव्यूअर या रिसर्चर जो है वो कुछ अपना स्वनिर्णय ले सकता है। जैसे 60 गृहिणियों का जो है 100 में से 60 गृहिणियों का उसको इंटरव्यू लेना है, तो 60 गृहिणियों का तो इंटरव्यू उसके लेना ही है। कौन से 60 गृहिणियों का वो इंटरव्यू लेगा वो उसके स्वनिर्णय पर निर्भर करता है। 100 में से 25 जो है
किसानों का इंटरव्यू लेना है किसी मुद्दे पर, तो उन 100 व्यक्तियों में 500, पॉपुलेशन 500 है, पॉपुलेशन 500 है, इस 500 लोगों में तो किसान 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन वो अपने स्वनिर्णय से 25 ही किसान का चुनाव करता है। अब किस किस किसान का चुनाव करता है ये सब निर्भर कर जाता है इंटरव्यूअर रिसर्चर के डिस्क्रिप्शन पर, स्वनिर्णय पर। अब 15 बरस से नीचे के आयु के बच्चों का उसे इंटरव्यू लेना है, तो ये पॉपुलेशंस में तो 15 के अलावा भी अन्य बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 15 का ही इंटरव्यू लेना है क्योंकि कोटा है। तो यहाँ स्वनिर्णय जो है वो इंटरव्यूअर या रिसर्चर दिखा सकता है कि किस बच्चे का वो इंटरव्यू ले, किसका नहीं ले, विद इन कोटाज। सो विद इन द कोटा द इंटरव्यूअर्स इज फ्री टू सेलेक्ट द पीपुल इंटरव्यू। इसके लिए वो स्वतंत्र है कि किसका इंटरव्यू लेगा किसका नहीं लेगा, उसे कोटा ही पूरा करना है। उस कोटा के अंतर्गत वो किसी का भी जो है इंटरव्यू ले सकता है। 100 व्यक्तियों का अगर चयन करना है तो वो कोटा पूरा करेगा। 500 व्यक्तियों के पॉपुलेशंस में से 100 व्यक्तियों को चयन करेगा और वो कोटा पूरा करेगा। 60 गृहिणी, 25 किसान, 15 वर्ष से के उम्र के नीचे के बच्चे। अब वो किस गृहिणी का इंटरव्यू लेगा और किसका नहीं लेगा 500 पॉपुलेशन में से, ये रिसर्चर इंटरव्यूअर पर निर्भर करता है। 25 किसान को का इंटरव्यू लेना है, 500 लोगों का जो पॉपुलेशन साइज है उसमें से किस किसान का वो इंटरव्यू लेगा, किसका नहीं लेगा, ये उस पर निर्भर करता है। उसी तरह से बच्चे के साथ है, उसे कूटा पोड़ा करना है। विद इन कोटा द इंटरव्यूअर इज फ्री टू सेलेक्ट द पीपुल इंटरव्यूड। स्वतंत्र है। तो ये कोटा सैंपलिंग समाप्त हुआ। अब जो तीसरा है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसके नाम से ही जाहिर होता है कि द सैंपलिंग विच इज बेस्ड बाय कन्वीनियंस। We depend upon convenience. What is approachable, what is not approachable. The things is approachable is convenient for the researcher. And the things which is not approachable for the researcher, which is inconvenience. And here sampling is depend upon convenience. The things is approachable. जहाँ तक कि इंटरव्यूअर जा सकता है, कर सकता है, उसमें वो अपना सैंपल बनाता है। जहाँ वो कुछ कर ही नहीं सकता है, जहाँ अप्रोच कर ही नहीं सकता है,
जो उसके सामर्थ्य के बाहर है, तो निश्चित है कि वो तो एक्सक्लूड हो ही जाएगा, जो है वो सैम्पलिंग के समय। उतना जो पॉपुलेशंस है जो कि उसके अप्रोच में नहीं है, उसका सामर्थ्य में नहीं है, तो पहले ही से एक्सक्लूडेड है। जो कन्वीनियंस है, जो अप्रोचेबल है, वही उसके लिए मीनिंगफुल है, वही उसके लिए मायना रखता है। जो चीज उसके सामर्थ्य में नहीं है, उसका कोई मायने मतलब नहीं है रिसर्चर के लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए। So the method of convenience sampling is also called the chunk. A chunk is a fraction of one population taken from investigations because of its convenience, convenient availability. Thus, a chunk is selected neither by probability nor by judgment but by convenience. A sample obtained from readily available lists such as telephone dictionaries or automobile registration is a convenience sample and not a random sampling, even if the sample is drawn at random from the list. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो डाटा अवेलेबल है रिसर्चर के लिए, अप्रोचेबल है, उसी को लेकर के वो कुछ निर्णय करता है, जजमेंट करता है, और उसमें से जो है सैंपल लेता है। रैंडमनेस का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे कि उसका एक उदाहरण है कि टेलीफोन की डायरेक्टरी है या ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है, या आजकल तो मोबाइल का जो नंबर है, तो उसमें अपने सुविधा के अनुसार से, ये देखिए हिंदी का जो शब्द है सुविधा और कन्वीनियंस, ये सुविधाजनक स्थिति में जो सैंपल प्राप्त किए जाते हैं वही कन्वीनियंस सैंपल है। और हमारे पास टेलीफोन डिक्शनरी है, ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन है, फ़ोन नंबर्स है, ये मोबाइल नंबर्स हैं लोगों के, ये हमको अवेलेबल है, इसकी सुविधा हमको है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रयास नहीं करने हैं, ये हमारे अप्रोच में है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारे सामर्थ्य में है, ये हमारे लिए सुविधाजनक है। सो दिस इज सो कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपल। Even if the sample is drawn at random from the list of telephone dictionary, automobile registration, mobile numbers, that is not so-called random sample. इसको कन्वीनियंस सैंपल ही कहा जाएगा, इसको रैंडम सैंपल जो है नहीं कहा जाएगा। Convenience sample are sometimes called accidental sample because those entering into sample enter by accident, they just happen to be
the right place at right time. That is where and when the information for the study is being collected. So, this convenience sampling have one name chunk, the another name is accidental sampling. Because it is accidentally convincing on the way of convenience, such sample are drawn from the populations in the course of research. So, at the right time, at the right place, what is available for the research point of view is convenient to the researcher to take sample from that. अपनी सुविधा अनुसार जो सही समय पर सही स्थान पर जो अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसमें से रिसर्चर सैंपल लेता है. इसको कन्वीनियंट सैंपल हम कहेंगे. ये समाप्त हुआ. Now the question arises, what is the size of sample? What should be the size of sample? सैंपल का साइज क्या हुआ जाना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो, जो रिसर्च हो, वो वैलिड्स हो, वो सत्य हो. अब पूर्णतः तो सत्य नहीं हो, लेकिन सत्य के निकट हो, रिलायबल हो, वैलिड हो. इसके लिए सैंपल साइज क्या हुआ जाना चाहिए? पहला तो है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 से 10% हो सैंपल साइज. दूसरा है डिपेंड्स अपॉन such like time, cost, degree of accuracy, desire etc. ये सैंपल साइज निर्भर करता है कि कितना समय है, क्या कॉस्ट इसके लिए आप बेयर कर सकते हैं, क्या एक्यूरेसी चाहा जाता है, और क्या आपकी इच्छा है. इन सबों पर सैंपल साइज निर्भर करते हैं. इसमें कुछ बातें जो है नोट करने वाली है. द साइज ऑफ
the sample should increase as the variation in the individual items increase. Variations, विविधताएं, विविधताएं जितनी ही आइटम्स में ज़्यादा होंगी, सैंपल साइज उतना ही बड़ा किया जाना अच्छा होगा। अगर सैंपल साइज में विविधताएं कम हैं, सब समान, जो आइटम्स में विविधताएं कम हैं, सब एक ही तरह का करीब करीब है, तो उसमें सैंपल साइज छोटा भी लिया जा सकता है। अब जैसे कि एक खास वैरायटी का जो चावल है, उसका चाहे 1 क्विंटल उसका चावल हो, चाहे उसका 10 दाना, वो सैंपल के लिहाज से 1 किलो चावल और 10 दाना दोनों बराबर है। इसलिए कि यहाँ जो आइटम्स हैं, यहाँ एक चावल को आइटम्स माना जा सकता है। ये जो चावल हैं करीब करीब सब मिलते जुलते हैं, करीब करीब एक ही साइज के हैं, एक ही उसमें गुणवत्ता है। ये मैं किसी खास वैरायटी के चावल के संदर्भ में पा रहा हूँ। चावल के भी विभिन्न किस्म के होते हैं, एक वैरायटी दूसरे वैरायटी से मेल नहीं खाती है, उसमें अंतर होते हैं। मैं एक विभिन्न प्रजाति के एक खास किस्म के चावल के बारे में मैं बोल रहा हूँ। जैसे बासमती चावल, पटना बासमती। अब पटना बासमती राइस का चाहे 1 क्विंटल लिया जाए सैंपल, चाहे 1 किलो लिया जाए, चाहे 10 दाना लिया जाए, सब बराबर है। इसलिए यहाँ सैंपल साइज छोटा लिए जा सकते हैं। किसी को जो है चावल दिखाने ले जाना है कि ये बासमती राइस जो है पटना बासमती राइस है, तो उसके लिए जो है 1 क्विंटल चावल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत 1 मुट्ठी चावल जो है वो किसी को दिखाने के लिए मार्केटिंग में जो है ले जाना पर्याप्त है। इसलिए कि सारे चावल जो है वो आइडेंटिकल है। सैंपल साइज छोटा है तो भी वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे चावल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आइटम में वेरिएशंस है, विविधताएं हैं, एक आइटम दूसरे आइटम से बिल्कुल ही मिलती जुलती नहीं है, कोई भी जो गुण है एक आइटम का दूसरे आइटम से मिलता ही नहीं। वैसी स्थिति में तो सेंसस करना पड़ेगा, हर एक आइटम का जो है सो फीचर्स लेना पड़ेगा। वहां तो सैंपल से काम ही नहीं चलेगा, इसलिए कि हर आइटम जो है दूसरे आइटम से भिन्न है। जिनको आप छोड़ दीजिएगा उनका फीचर्स तो आप जान ही नहीं पाइएगा। So if the variations is high, the sample size should be high, and in the condition where one item is perfectly dissimilar
To the others, the censored method is last resort. वहाँ सेंसस ही आपको कराना पड़ेगा, सेंसस मेथड में ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सैम्पलिंग से वो रिसर्च का काम वहाँ नहीं हो सकेगा। जिनको आप छोड़िएगा उनका फीचर्स ही नहीं जानिएगा। सब एक दूसरे से तो बिल्कुल ही परफेक्टली डिसिमिलर है। अरे कुछ सिमिलरिटी हो तब न कुछ आइटम को छोड़ा जा सकता है। परफेक्टली डिसिमिलर है तो बहुत मुश्किल है, सेंसस करना पड़ेगा। एक एक जो है आइटम्स को जो है वो तो जज करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशंस। सो इन प्रिसाइज, if variation is less, sample size is less. Variation is much, variation size much. Now the second point noted here. The greater the degree of accuracy desired, the larger should be the sample size. बिल्कुल यूनिवर्सल मतलब कि लॉ है रिसर्च का कि जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी चाहिएगा अपने रिसर्च में, आपको उतना ही बड़ा सैंपल साइज रखना होगा। तो ये दोनों ही जो है जो बिंदु हैं वो साइज ऑफ सैंपल में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समाप्त हुआ साइज ऑफ सैंपल। नाउ द मेरिट ऑफ सैंपलिंग मेथड्स। सैंपलिंग मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं? फर्स्ट, लेस टाइम। क्योंकि पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से से आप जो है एक सैंपल आप बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, चाहे कोई सैंपलिंग का कोई भी मेथड आप प्रयोग उसमें लाते हैं, लेकिन पॉपुलेशंस के एक छोटे से हिस्से में आप अध्ययन करते हैं, तो आपका जो है समय तो बचत होगा ही, समय तो कम लगेगा ही, और आपको पैसे की भी बचत होगी, लेस कॉस्ट। थर्ड वन, more reliable and less errors than complete sensors such as lack of communication, filtration of communication। अब देखिए ये उल्टी बात है। ऊपर तो मैंने आपको पढ़ाया कि भाई अगर एक्यूरेसी चाहिए तो भाई सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा। अब यहाँ जो है सो उल्टी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सैम्पलिंग के कारण ही जो है वो एरर्स कम होते हैं देन कंप्लीट सेंसर्स सच एज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्टरेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ये जो है इसके पीछे जो है वो कारण जो है वो रिसर्चर का जो एक अपना जो सामर्थ्य है, जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो उसके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसका ये लिमिटेशंस है। आपके पास रिसोर्स ही कम है और आप जो है अपने सामर्थ्य से बाहर जो है आप जो है
पूरे पॉपुलेशन का सेंसस करने लगिएगा। सेंसस मतलब है कि वैसा रिसर्च, वैसा अध्ययन जिसमें कि हर एक आइटम जो है शामिल हो, और आपको सामर्थ्य है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास, आप रिसोर्सफुल है ही नहीं, या कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की भी प्रॉब्लम आपको झेलनी होगी। फिल्टरेशन ऑफ कम्युनिकेशंस, कुछ उपाय लगाइएगा भी कि कहाँ कहीं से कुछ जो है जानकारी मिले तो वहाँ से जानकारी देगा कुछ, और आपके पास आते आते जो है उसमें फिल्टरेशन हुआ रहेगा, जानकारी आपके पास आया रहेगा कुछ। आपके पास साधन ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप इसको मिनिमाइज कर सकें। तो ये जो लैक ऑफ रिसोर्सेज, beyond the capacity of the resources, beyond the capacity of a researcher. If there is any research is done, certainly it's become erroneous. Here lack of communication is evident, filtration of communication evident. कम रिसोर्सेज की स्थिति में जो है कोई रिसर्चर जो है वो एक्सक्यूट नहीं कर पाएगा जो है सो पूरे सेंसस को या बड़े सैंपल साइज को। इसलिए वो जो है एक छोटा सैंपल साइज चुनता है जिसका अध्ययन वो सुगमतापूर्वक कर सके, उसमें जो है वो कम गलतियों का जो है गुंजाइश है, उसमें जो है संवाद सही होंगे, सही चीज़ों को वो जान पाएंगे, और फिल्ट्रेशन और कम्युनिकेशन का जो है जो मसला है उसको भी जो है वो जो है नियंत्रित किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये बस में एक रिसर्चर के हैं। इसलिए यहाँ जो हमने जो बताया कि सैंपल साइज बड़ा होने से जो है एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, तो एक्यूरेसी तब आएगी जब आप जो है रिसोर्सफुल होइएगा, आप जब समर्थवान होइएगा, आप जब सही ढंग से रिसर्च कर पाइएगा, तो सही में जो है सो बड़े सैंपल साइज से बेहतर जो है आपको परिणाम आएंगे। लेकिन आप जब रिसोर्सफुल है ही नहीं, जब आपके पास सामर्थ्य है ही नहीं कि आप उतने बड़े सैंपल साइज में काम कर सके, रिसर्च कर सके सुगमतापूर्वक, तो निश्चित है कि जो सैंपल साइज आपके समर्थ के बाहर है, जिसमें कि आपका अध्ययन जो है वो जितना आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसमें आप नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित है कि कई तरह की गलतियां उसमें होगी, वो सही नहीं होगा, गलत होगा, और अध्ययन का ये तरीका ही गलत है। Whatever you have resourceful, do the work under your capacity. ये तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि जितना चादर है लंबा आपका उतना ही पैर जो है आप फैलाइए। ये तो लोग कहावत लोग बोलते हैं।
more detailed information in the purview of given cost. ये मेरिट्स हैं सैंपल मेथड्स के, मोर डिटेल्स इंफॉर्मेशन इन द परव्यू ऑफ गिवन कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है उसके अंतर्गत जो है, जो आप अपने सामर्थ्य में सैंपल साइज जो चुनते हैं, तो एक विस्तृत जो है आपको जो है ब्यौरा जो है हर चीज़ों का जो है आपको उपलब्ध होता है। इसलिए कि आप अपने सामर्थ्य में काम कर रहे हैं और जो डाटा जो आपको प्राप्त करना है उसके लिए जो है आप यथेष्ट what is required, what is desired, you pay for, and if you pay what is required, what is desired, certainly you get better result। तो ये सब सारे जो है वो सैम्पलिंग के जो है मेरिट्स हैं, गुण हैं। ये कक्षा अब यहीं समाप्त होती है। आगे की बातें आगे की कक्षा में। धन्यवाद।